Okay, so we have studied about arrays, how to declare an array, how to initialize an array with some values, how to perform basic operations on an array. Most of you have seen the previous videos and are clear with this topic. Now the second very important thing that comes under the topic array is searching. So searching means to find an element, or to search for an element. ठीक है? So supposingly you have an array of size 5, 0, 1, 2, 3, 4 and 5. That is size is 6, and there are some elements stored in it. The elements are 10, 15, 17, 32, 5 and 8. ठीक है? These are the elements. This array is of size 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 size, and the elements are there, and you have to search for 32, whether 32 is present in this array or not, right? So if I ask you, you will be very confident, and it would be very easy for you to tell that yes ma'am, 32 is present in this and it is at the 4th position in the array. But we have to understand how computer does this. Computer also performs the searching. So how computer performs searching on an array? So basically there are two algorithms, or you can say two types of searching, or two types of ways in which a computer searches an element in an array. One is linear search and other is binary search. ठीक है? One is linear and the other is binary. Linear is something, if by the name you know, linear means sequence, तो इसीलिए इसको सीक्वेंशियल सर्चिंग भी कहते हैं. लीनियर सर्चिंग और सीक्वेंशियल सर्चिंग, and this is binary search. So there are two types of searching, mainly linear searching and binary searching. In this part we will only deal with linear searching. I will tell you how the linear search works, what is the algorithm, what are the code, and in the next part we'll study about the binary search. This much is clear. Searching means to search for an element. For us it is very easy to see the array and tell that yes, 32 is present over here. But how this work computer will do, we will understand this using two techniques. First is linear search and the second is binary search. So in this part we'll start with the linear search. Clear? Okay. So now we will start with linear search or sequential search. By the name you know, linear means in a serial order, है ना? In a serial order. अगर आप एक ऑर्डर में चल रहे हैं सीरियली, देन इट कैन बी टोल्ड एज लीनियर. जैसे कि एक इमेजिन करो कि यू आर अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है? यू आर अ पुलिस एंड यू आर सर्चिंग फॉर अ थीफ. ठीक है? आप एक थीफ को सर्च कर रहे हैं एंड दैट थीफ इज़ देयर इन अ ट्रेन. ठीक है? ट्रेन में है. ट्रेन में ये कोचेस होती हैं. दीज आर व्हाट? दीज आर द कोचेस. नाउ द थीफ इज़ समवेयर हेयर. थीफ है आपका, वो यहाँ है. यू आर ओनली वन, सिर्फ एक आप हो और कोई नहीं है. एंड योर टास्क इज़ टू सर्च फॉर द थीफ. आपको थीफ के लिए सर्च करना है. तो आप क्या करोगे? बेसिक जो एक बहुत ही बेसिक लॉजिक है वो ये है कि आप सबसे पहले फर्स्ट कोच में, कोच नंबर 1 में सर्च करोगे, फिर कोच 2 में, फिर कोच 3 में, कोच 4 में, कोच 5 में, एंड सो ऑन टिल द लास्ट कोच. ये बेस्ट तरीका तो नहीं है. दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे और दिस इज़ नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे, बट दिस इज़ द ईजीएस्ट. वे. बेस्ट तरीका तो ये नहीं है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, बट ये आपका ईजीएस्ट तरीका. आप इसी तरीके से सर्च कर सकते हो. पहले कोच 1 में गए, थीफ मिला नहीं, तो फिर कोच 2 में गए, नहीं, कोच 3 में गए, कोच 3 में थीफ मिल गया, तो बस आप बाहर आ गए, आप आगे का आपने सर्च नहीं किया. सो दिस इज़ व्हाट? लीनियर सर्च. अब यही एल्गोरिथम जब हम जावा में लिखते हैं, देन इट बिकम्स लीनियर सर्च
टेक्निक और लीनियर सर्च एल्गोरिथम इन जावा। ठीक है, अब ये जावा में कैसे करेंगे, इसका कोड क्या होगा, वी विल स्टडी दैट कोड। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वाइल स्टडीइंग द सर्चिंग, अभी आगे हम सॉर्टिंग भी पढ़ेंगे, अभी हम सर्चिंग कर रहे हैं, हमने एक लीनियर सर्च किया, इसके बाद हम बाइनरी सर्च भी करेंगे। सो आपको इसमें ध्यान ये देना है, ये चीज़ समझनी है कि हम लोग जो कोड है, देर आर 4 और 5 लाइन्स ऑफ कोड, 4 और 5 लाइन ऑफ कोड होता है। सी द बेसिक इज़ दिस दैट इट रिमेन्स सेम, ये एक तरीके का फैक्ट है और ये हमेशा सेम रहता है। दिस इज़ एन एल्गोरिथम, ये चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स द सेम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, राइट अ प्रोग्राम टू टेक एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड सर्च फॉर एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च, तो वो जो कोड अभी मैं आपको बताऊंगी सेम एज इट इज़ वही कोड लिखना होता है। सो यू कैन जस्ट लर्न दैट कोड, आप उस कोड को लर्न कर सकते हैं, बट इफ़ यू विल अंडरस्टैंड, if you will understand, then it will become very easy for you to learn the code. अगर आपने उसको समझ लिया तो आपको याद करना भी इजी हो जाएगा, अगर आपने नहीं समझा तो आपको याद करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। सो दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू what is linear search. Otherwise you can just open any book, any net, ChatGPT, where you want, learn linear search in Java, they will give you a code, learn that code, work done, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ हाउ linear search work. Now see, I have given you an example of a train. So a train can be also understood as an array. एक एरे की तरह भी आप उसको देख सकते हो, 0 1 2 3 4, ओके, ये मेरी एरे है। ठीक है, दिस इज़ माई एरे। इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ है 5। ये मेरी एरे है, अभी मैं सिंपल एक एरे लेके चल रही हूँ, इसका नाम है ए, ये एक एरे है। अब मुझे इसमें कुछ एलिमेंट्स स्टोर्ड है, पहले से कुछ एलिमेंट्स रखे हुए हैं, 12 5 10 1 एंड 8, ये कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक, और आपको इसमें एक एलिमेंट सर्च करना है, एक सर्च एलिमेंट करना है जिसका जो है कि 1, आपको फाइंड आउट करना है वेदर 1 इज़ प्रेजेंट इन दिस एरे और नॉट। तो मैंने भी बताया कि अगर आपको थीफ को सर्च करना है, आप पहले कोच में जाओगे, फिर दूसरे में जाओगे, फिर तीसरे में जाओगे, फिर चौथे में जाओगे, फिर पाँचवें में जाओगे। जब जैसे ही आपको मिल जाएगा आप बस उसके आगे नहीं जाओगे, उसके आगे टाइम नहीं वेस्ट करोगे ना, आपको पता है सिर्फ एक थीफ ढूंढना है। तो एक थीफ आपको अगर पहले ही डब्बे में मिल गया तो आप नेक्स्ट डब्बे तो नहीं जाओगे, नेक्स्ट कोचेस तो नहीं जाओगे। तो सिमिलरली इसमें भी हम यही करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एरे का इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स से हम हर बार चेक करते हैं क्या ये इस एलिमेंट के इक्वल है। अगर इक्वल है तो हम पोजीशन लेके बाहर चले आते हैं, और नहीं है तो हम कीप ऑन सर्चिंग करते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं। अच्छा, अब ये कैसे करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे 3 चीज़ें पूछी जाती है। लीनियर सर्च में आपसे 3 चीज़ें हो सकती है। एक हो सकता है कि सर्च फॉर एन एलिमेंट, कि वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। दूसरा, पोजीशन क्या है उस एलिमेंट की, पोजीशन ऑफ दैट एलिमेंट, कि क्या 10 प्रेजेंट है इस एरे में, और अगर प्रेजेंट है तो किस पोजीशन पर। तो आपको बताना पड़ेगा थर्ड पोजीशन पर, सेकंड नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड एलिमेंट है ना, तो थर्ड पोजीशन ये आपको बताना पड़ेगा। और तीसरा हो सकता है कि अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट का अकरेंस। मान लो सपोजिंगली यहाँ पे तुम्हारा ये भी 10 होता, ठीक है, ये भी 10 होता, और आपसे पूछा जाता कि आपको सर्च करना है कि 10 इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। पहली चीज़, कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है और कितनी बार प्रेजेंट है। तो अगर आपको बताना होता तो आप बताते कि 10 हाँ प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन पर प्रेजेंट है, एंड थर्ड और फोर्थ पोजीशन में प्रेजेंट है। उसके अलावा कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है, 2 टाइम्स इसकी अकरेंस है। तो आपको ये 3 चीज़ें
इस तरह के लीनियर सर्च के क्वेश्चंस पर बेसिकली पूछी जाती है। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है, यही 3 चीज़ें पूछी जाती है और ये तीनों चीज़ें एक ही प्रोग्राम से हो जाती है। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बस वही लाइन ऑफ कोड्स है। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप ये प्रिंट करिए, नहीं प्रिंट करना है, अगर नहीं पूछा गया एग्जाम में तो यू विल नॉट प्रिंट द पोजीशन एंड अकरेंस, यू विल ओनली टेल येस सर्च इज सक्सेसफुल, 10 इज़ फाउंड या 10 इज़ फाउंड या सिंपल सर्च इज़ सक्सेसफुल आप मैसेज लिख सकते हो। पोजीशन पूछा गया है तो आपको लिखना पड़ेगा सर्च इज़ सक्सेसफुल, द एलिमेंट इज़ फाउंड एट दिस पोजीशन। अकरेंस पूछा गया है तो द सर्च इज़ सक्सेसफुल, इट अकर्स 3 times, 4 times, whatever number of times it occurs. Okay, so how it will be done? Now we'll go with the pure programming or pure code. Okay, see now. So we'll start with linear search. लीनियर सर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले आपको एक एरे इनपुट लेनी पड़ेगी, एक एरे इनपुट लेनी पड़ेगी, ठीक है। एरे इनपुट लेने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, पहले एरे इनिशियलाइज डिक्लेयर करना है। int a of what size you are going to declare, so I am going to declare 5 इसका साइज़ होगा। फिर I will write a message sopln enter elements of array, enter elements of array. When the user will input it, I will take it through the loop int I is equals to 0, I is less than equals to 4, I plus plus -1 तक चलता है। लेते कैसे इनपुट, a of I is equals to sc dot next int। इतना करने से हमारा एरे डिक्लेयर हो गया। इतना पार्ट आपको अभी तक पता होना चाहिए कि एरे इनपुट कैसे लेते हैं। आई होप सो एवरीबडी इज़ क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट एट हाउ टू टेक एन एरे एज इनपुट। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद आपको यूज़र से मांगना पड़ेगा सर्च एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है। तो उसके लिए भी आप सिंपल मैसेज करोगे sopln एंटर एलिमेंट टू बी सर्च्ड, कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। आप उनसे मैसेज तो लोगे, यूज़र कुछ इनपुट करेगा, वो int टाइप का ही होगा। आई विल स्टोर इट इन se मीन्स सर्च एलिमेंट। स्टोर कैसे करते हैं ये सबको पता है, sc डॉट नेक्स्ट int। इतना पार्ट भी क्लियर है। हमने एक एरे ले लिया, कौन सा एलिमेंट सर्च करना है वो ले लिया, 2 चीज़ें हमारे पास हो गई। अब हमें अपना ओरिजिनल काम शुरू करना है, डैट इज़ ऑफ सर्चिंग। हमें अपना सर्चिंग का काम शुरू करना है। सर्च करने के लिए हमें पता है कि कैसे सर्च करते हैं या कोई भी काम एरे पे कैसे करते हैं, लूप चला के। तो सिंपल आप लूप चलाइए, कहाँ से कहाँ तक, बस वही सेम बात है। int I इज़ इक्वल्स टू 0 से लेकर के साइज़ -1 तक, इस केस में 4 होगा, I प्लस प्लस। आपको सर्च कैसे करना था, सर्च ऐसे करना था कि अगर ये एक एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो पहले हम पहले वाले में सर्च करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, ऐसे ही सर्च करना है। तो आप इफ़ लगाइए, इफ़ दिस a ऑफ I इज़ इक्वल्स टू SE, अगर ये a ऑफ I जो है SE के बराबर है, मतलब पहली बार ये क्या होगा, a ऑफ ज़ीरो अगर सर्च एलिमेंट के बराबर है तो क्या कर दोगे आप, तो आपका काम हो गया, आपको एलिमेंट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक वैल्यू लोगे पॉज करके, POS पॉज, दैट इज़ पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के लिए यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर लीजिए, ऊपर यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर लीजिए int पोजीशन, और इसको -1 कर रहा है। ठीक है, -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्स पूरे एरे में किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स -1 नहीं होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, पर -1 किसी का भी नहीं होगा। तो हमने पहले से इसको वैल्यू रखी है -1, और जैसे ही हमको एलिमेंट मिल जाएगा, जैसे कि हमको यहाँ पे 0 पे मिल गया, तो हम इसको पॉज कर सकते हैं I प्लस 1, ये वैल्यू हम इसको दे देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम कर देते हैं ब्रेक मतलब तुरंत ये लूप के सबके बाहर आ जाए। ब्रेक का मतलब होता है तुरंत लूप के बाहर आ जाए। ये लूप के बाहर आ जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर आप कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ पॉज, ये जो पॉज है, इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, या आप सिंपल लिख दो इज़ इक्वल्स टू -1, तब तो आपको क्या हुआ है, आपको इसका मतलब आप पॉज अगर अपडेट ही नहीं कर पाए वैल्यू, इसका मतलब आपका सर्च अनसक्सेसफुल हो गया, सर्च इज़ अनसक्सेसफुल, और यू कैन राइट दैट एलिमेंट नॉट फाउंड। एल्स आपका क्या हुआ,
एल्स आपको एलिमेंट मिल गया तो आप लिख सकते हो सर्च सक्सेसफुल, सर्च सक्सेसफुल। ठीक है, ये आपने लिख दिया, आपने बंद कर दिया, यहाँ पर आपका क्लास और मेन भी बंद हो गया। ठीक है, दिस इज़ द सिंपल कोड फॉर राइटिंग और फॉर फाइंडिंग एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च। ये जो कोड है, ये जो सिंपल सा कोड है, ये है लीनियर सर्च का कोड, यही रहता है। कभी भी आपसे अगर प्रोग्राम में बोला 20 एलिमेंट्स, 40 एलिमेंट्स, 100 एलिमेंट्स, 200 एलिमेंट्स एंड फाइंड एन एलिमेंट यूजिंग लीनियर सर्च, तो आपको सिर्फ इतना कोड, ये 4 से 5 लाइन आपको लिखनी है। ये याद कर लोगे, एज इट इज़ लिख दोगे, बट याद करना ईजी कब होगा, जब समझ में आएगा। आपको क्या करना है, एक लूप चलाना है 0 से लेकर के कहाँ तक, एरे के साइज़ -1 तक लूप चलाना है। हर बार 1 का इंक्रीमेंट करना है और हर बार हम इस एलिमेंट को, पहले के एलिमेंट को सर्च एलिमेंट से सर्च करेंगे, फिर दूसरे को करेंगे, फिर तीसरे को करेंगे, फिर चौथे को, एंड सो ऑन टिल लास्ट एलिमेंट। जैसे ही हमें मिल जाएगा, अगर हमें अपना जो एलिमेंट था वो यहाँ मिल गया 0 1 2 2 पे मिल गया, a ऑफ i जो है, a ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 10 हो गया, ये ट्रू हो गया, तो क्या होगा, पोजीशन में क्या आ जाएगा, 2 + 1 दैट इज़ 3, है ना, i + 1, i इज़ वॉट 2, सो 2 + 1 इज़ 3, और हम ब्रेक होके बाहर आ जाएंगे। बाहर आ गए हम। अब हमने देखा पॉज इज़ इक्वल्स टू -1, नो, एल्स कंडीशन में जाएंगे और लिख देंगे सर्च सक्सेसफुल, हमें अपना एलिमेंट मिल गया। अब इसी सेम क्वेश्चन में अगर ये भी पूछा होता कि इसका साइज़, इसका लोकेशन भी बता दीजिए कि आपको मिला कि नहीं मिला और कहाँ मिला, तो हमको कहाँ मिला है, 3rd पोजीशन पे मिला है, ये तो हमें पता ही चल गया ना, पॉज इक्वल्स टू 3, पॉज मतलब पोजीशन, पोजीशन इज इक्वल्स टू 3, देखो 1st 2nd 3rd पे मिला, तो हम यहाँ पर क्या प्रिंट कर सकते थे, हम यहाँ पर साथ ही साथ ये भी लिख सकते थे, हम ऐसे लिख सकते थे कि SOPLN एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन प्लस पॉज, ये लिख देते तो हमको पता चल जाता कि एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 3, कि मिला और कहाँ मिला, 3rd पोजीशन पर मिला। ठीक है, सो दिस इज़ द वे। अब ये इसी से पता चल गया कि हमने एक ही प्रोग्राम में दोनों चीज़ें कर ली। अगर हमको पूछा गया है कि पोजीशन बताइए तो हम पोजीशन बताएंगे, नहीं पूछा गया है नहीं बताएंगे, सिर्फ लिख देंगे कि सर्च सक्सेसफुल। अब मैंने इसमें बोला था 3rd टाइप का क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ अकरेंस, कितनी बार मिला, तो कितनी बार मिला के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक और यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, काउंटर वेरिएबल। कैसे, देखो एक काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, जस्ट वेट आई टेल यू हाउ। काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दो int count इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और जैसे यहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे लिख दो काउंट प्लस प्लस, और यहाँ पे इसको काउंट भी प्रिंट कर दो, नंबर ऑफ टाइम्स। एक और मैसेज लिखो SOPLN एलिमेंट प्रेजेंट दिस टाइम, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। जैसे कि अगर ये आपकी एक एरे है 0 1 2 3 एंड 4 और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 15 17 2 10 एंड 2, ठीक है, ये आपकी एरे है और यूज़र ने आपसे सर्च एलिमेंट बोला है 2 को सर्च करिए कि 2 प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है ये बोला है, या कितनी बार प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पर आए, आपने चेक किया a ऑफ, पहली बार i की वैल्यू क्या है 0, a ऑफ 0 इज़ इक्वल्स टू 2, नो, तो फिर से लूप चलेगा। a ऑफ 1 इज़ इक्वल्स टू 2, नो, फिर से लूप चलेगा, 3 हो जाएगी। a ऑफ 3 इक्वल्स टू 2, यस, जैसे ही यस हुआ तो पॉज की वैल्यू क्या हो गई, पॉज की वैल्यू हो गई i + 1, 2 + 1 दैट इज़ 3, और काउंट की वैल्यू क्या हो गई, काउंट की वैल्यू 0 + 1 दैट इज़ 1 हो गई, ठीक। फिर अब ये बाहर आया इफ़ के, और फिर इसने चेक किया कि क्या a ऑफ 3 इज़ इक्वल्स टू SE, नो, फिर ऊपर गया, फिर क्या a ऑफ 4 इज़ इक्वल्स टू SE दैट इज़ 2, यस ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे पोजीशन अब आ जाएगी i + 1 दैट इज़ 5, और काउंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, काउंट क्या हो जाएगा
2, तो आप ये सिंपल आपके पास कितनी बार 2 प्रेजेंट था आपके इस एरे में, 2 टाइम्स। सही आया, आपने यहाँ पे प्रिंट कर दिया द एलिमेंट इज प्रेजेंट 2 टाइम्स। ठीक, सो दिस इज द सिंपल वे of searching an element using linear search. Clear? इतना समझ में आया? Okay. So to see only this is the code of linear search. ये कोड है लीनियर सर्च का। इस कोड से आप सिंपल सर्च कर सकते हो कोई एलिमेंट, वेदर इट इज़ प्रेजेंट or whether it is not present in an array, and if it is present and if you have to print the position, you simply write this position 1, otherwise you just write search successful. Clear? Is this clear to everyone? Okay, so now this was linear search. Try to understand and learn this code. If you can understand, then there will be no need of learning also. Clear? This code remains unchanged for any number of elements, for any program that write a program to input an element or input an array of size 10, size 20, size 40, size 50 and search an element using linear search. तो आँख बंद करके आपको ये प्रोग्राम लिखना है, इसको याद कर लोगे, as it is linear search का प्रोग्राम हो जाएगा। Clear? Okay, hope so this is clear.